Today's topic is about topic on ear. It is about the anatomy of the ear, the basic one. So you people are fresh from anatomy batches. So in this year is you should be thorough with the anatomy part and the physiology part. It's absolute must. बाकी के चैप्टर्स आप बाद में पढ़िएगा. फर्स्ट आपको ईयर का एनाटमी, ईयर का फिजियोलॉजी, इट शुड बी थरो. You cannot make any mistakes in these two chapters. If you are not reading these two chapters thoroughly, you will not understand any pathology, you will not understand the mechanisms, and everything will be passing over your head in the clinics also. So, have you purchased the books? No. So, get the books. कोई इसमें एडिशन चेंज नहीं होता है, होता भी है तो बहुत माइन्यूट चेंजेस होंगे. दैट इज़ नेग्लिजिबल कि आप उसके लिए एक नया एडिशन लेंगे, उसके वेट में बैठे रहें. इट्स ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू द बुक्स. यू विल बी मार्किंग, यू विल बी स्टडिंग थ्रू द मार्क थिंग्स, then it will be easier for you to revise. So purchase the books at the earliest and go through the anatomy sections first, both in the ear, in the nose, and if possible, time permits, in the throat also. Okay? So, any idea, background knowledge of ear anatomy? What is it about? Any compartmentalization of the ear? How it is divided? Anybody? Outer part or the external part? There is something in between, that is the middle ear, and something inside, that is the inner ear. Okay. So the ear is divided into three sections. One is the external ear, one is the middle ear, and one is the inner ear. So today we will be talking about the external component, external part. So what is the external ear divided into subparts? Who all are having this ENT posting right now? Anybody from here? Very good. Or koi? Okay. So outer ear comprises of, or the external ear comprises of, the outside, the what is visible is called pinna. उसके बाद ये जो एक ओपनिंग सा है, इट इज कॉल्ड एज द external auditory meatus. It is not a part, it is an opening, but that is the external auditory meatus leading inside the or leading into the external auditory canal. Be specific about the terms. अगर आपको canal बोलना है तो आपको canal ही बोलना है. meatus बोलेंगे तो that is wrong. ठीक है? And try to converse between yourselves in technical terms. आप तो मेडिकोज हैं, यू शुड बी प्रॉपरली एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ. अभी आपसे पूछा जाएगा एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल कैनाल के पैथोलॉजी बताएं, तो आप उसमें एक्सटर्नल कैनाल के पैथोलॉजीज बताएंगे. मिएटस हेडिंग तो नहीं देंगे ना, दैट इज एन ओपनिंग. मिएटस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग. सो पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दैट इज थ्रू एन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस. उसके बाद थर्ड कॉम्पोनेंट इज आफ्टर द कैनाल, इट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है? तो ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है एक्सटर्नल ईयर. पॉइंटर. So first part is external ear, second part is middle ear, and the third part is inner ear. So this is the diagrammatic diagram showing the external ear. We'll go into detail into that. So what is the, now we should talk about the pinna. How does it look like? And how does it feel like? Feel कैसा है इसका? कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. ठीक? तो किस चीज से बना हो सकता है ये? कार्टिलेज. तो what type of cartilage is flexible? Hyaline? Elastic, very good.
What are the types of cartilages? These are what am I asking are the questions that are asked in the Viva. What are the types of cartilages? Elastic, hyaline and fibrous. तीन. अब इलास्टिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उसको इलास्टिक बनाता है? इलास्टिन फाइबर्स होते हैं एंड इट डज नॉट कैल्सीफाई. बाद बाकी लोग कैल्सीफाई होते हैं. किसी का कान कैल्सीफाइड दिखा है अभी तक? नहीं. It doesn't calcify. Yeah, so that is why it is pliable throughout the life. Pliable मतलब flexible. Okay. So pinna also called as the auricle projects at a variable angle from the side of the head. It functions in collecting sound. Does it do this function in humans? Is it functional? Are we able to move our pinna? Some people can, but very handful. Majority are not able to move. Can you give an example where that pinna can be moved? In a elephant. ठीक है, elephant चलो elephant पहला elephant बोला और ज़्यादा precise जो hearing पे ही dependent है. Bats. हैं? गोरू करते हैं, ठीक है. So in animals, it is more functional, but in humans it is almost vestigial. ठीक है. But some people can, some people can move their pinnas. Please don't laugh. हो गया. The lateral surface of the pinna is dominated by concavities, in particular the concha. And other these impressions, these things, this one, this one, this one, this elevation. So what is this? Anybody? These elevations and depressions, everything has its name, and you can be asked about it. So this outer curvature, this is called as the helix. Okay, this outer thing, this is called as the helix. This second, this one, this curvature is helix. The second elevation, this one, this is called as the antihelix, just opposite to helix. Okay, the helix starts from this part. यहाँ से continue हो रहा है ना ऐसे करके. तो this part, this is called as the root of the helix. Okay. Now यहाँ एक concavity है, okay, और यहाँ एक concavity है. You can feel also in your pinnas. So this first, this is shaped like a triangle. Okay. अगर आप अपने adjacent बंदे का देखोगे, this is faced like a triangle. That is called, that is why it is called as triangular fossa. Okay, and the upper one is the scaphoid fossa. Okay. Now coming down, this elevation, this one, this is called as the tragus. Very important. Check. This one is the tragus. इसके just opposite में यहाँ पे ये वाला जो elevation है, that is called as the antitragus. ठीक है. How to remember the names? Simplified. उसके बाद ये जो पूरा depression है, this one, this is the opening, and this depression, this one, this पूरा depression is called as the concha. इसमें अब दो हैं सब parts. ऊपर में जो है, that is, this one is called as Simba conchae and this one is called as the cavum conchae. What is the clinical importance of this Simba conchae? There is something called as suprameatal triangle. That is important in the in regards to the ear surgery. It is directly over that structure, over that landmark, not structure, landmark. Okay. So and this cartilage is almost flat. So this cartilage can be used in many surgeries for reconstruction. Okay. Now coming down, this entire structure was cartilaginous. Now this structure, particularly concerned with the girls, it is called as lobule, and it is made up of fatty tissue, fibrous tissue and
फैटी टिश्यू बोथ कंबाइंड, ठीक है सर। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? डज इट हैव एनी इंपॉर्टेंस? तुम लोग दोनों बात क्यों कर रहे हो? इधर, तुम इधर आओ, तुम उधर बैठो, इधर आ जाओ। हाँ वहीं बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। क्या होता है इसका काम? उसमें फैट है। फैट इज अ वेरी प्रेशियस थिंग. It can be used in many reconstructive surgeries in regard to ENT. So we can harvest that fat from that site. ठीक. दूसरा, cosmetically very important for the girls. ठीक. तो ये हो गया lobule. It is not elastic, it is made up of fibrofatty tissue. Okay. So ये सारे नाम हो गए, सारे नाम हैं. The cartilage itself. So the cartilage of the pinna is a single cartilage. It is not multiple cartilage. It has elevations and indentations, but it is a single cartilage, single elastic cartilage. Okay. So now the cartilage looks like this, only the cartilage part, without the skin and the other structures. So it has a deficiency anteriorly above the tragus. Tragus कहाँ था? ये, ठीक. तो दिस एंटायर पार्ट इज द कार्टिलेजिनस. यहाँ पे एक डेफिशिएंसी है, दैट इज कॉल्ड एज द इंसिसुरा टर्मिनालिस, एंड इट इज ऑल्सो ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज अ साइट ऑफ एंडोरल इंसिशन. देखो, ईयर सर्जरीज आर परफॉर्म थ्रू वेरियस रूट्स. If you are going from behind, then it is the post-oral route. Auricle, post-oral. Okay? If we are going through the canal, okay, so that is the permeatal, extraordinary meatus, permeatal approach. Okay? And if we are going through this, the area where that cartilage is dehiscent, if we are expanding that area and going inside the middle ear, then that is called as the end oral route. तो 3 routes क्या क्या हैं या approaches क्या क्या हैं? Post oral, through the canal हो गया permeatal, and opening the incisura, that is called as the end oral. 3 routes, ठीक है. तो site of end oral incision, it will not damage the cartilage and its perichondrium, ठीक है, and allows wide exposure of the deeper parts. Is cartilage a vascular structure? Does it have its own blood supply? So what is important for it to survive? These are all anatomy questions. You have already studied this. डिस्कस मत बोलो, बताओ. अगर कुछ है तो बोलो. क्या चाहिए होता है कार्टिलेज को सर्वाइव करने के लिए? ब्लड तो चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा. कहाँ से मिलेगा? देयर इज समथिंग, सम लेयर अबव द कार्टिलेज दैट सप्लाइज दैट. वेरी गुड. पेरिकॉन्ड्रियम. ठीक. क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियम. सो this incision, that incisura through the incisura terminalis, it will not damage the cartilage or its perichondrium. मतलब blood supply of the cartilage will also be not hampered. ठीक. And because the cartilage is itself avascular, अगर blood supply hamper हुआ तो वहाँ का necrosis हो सकता है. ठीक है. That is why we make use of that dehiscence, that area where that is not harming the cartilage. Okay. So now the cartilage part, this of the pinna, it is continuing inside the canal. Okay. Now the external auditory canal, that is around 24 millimeters in length in adults, plus minus variation of 2 to 3 millimeters.
So the pinna cartilage is continuing inside the canal for first 8 millimeters. So outer 1/3 of the canal is cartilaginous part, medial 2/3 or around about 16 millimeters of the canal is bony part. याद रहेगा? This everybody confuses कि कितना है, पूछा जाता है ये सब वाइवा में. जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, everything will be asked. These are the basic questions. It can be asked with anybody. Okay? So the cartilage extends around 8 millimeter to form the lateral 1/3 of the external auditory canal. Okay? Ligaments are not important at your level. Muscles, since rudimentary, they are functionally unimportant. Extrinsic muscles connecting the ear to the surrounding structures are auricular, this anterior auricular muscle, superior auricular muscle and posterior auricular muscle. They are inserting into the epicranial aponeurosis. Okay? Supplied by facial nerve, obviously facial nerve. And the intrinsic muscles, these are also inconsistent and without useful function. That is why we are not able to move that thing. So these are the names just for interest. So what is the blood supply of this area? बताइए, इस एरिया का ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगा? कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड. एक्सटर्नल कैरोटिड के ब्रांचेस ही इस एरिया में सप्लाई करेंगे. तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांचेस? एनीबॉडी? This is a very hit question. ये तो पूछा जाता है, branches of external carotid artery. जितने भी आते हो, कितने हैं? Number wise, 6, 7, 8, 9, 8. He says 8. Yes, it is 8. Can you name them? First branch? टर्मिनल तो 2 है, वो तो ठीक है. फर्स्ट ब्रांच सुपीरियर थायराइड. सेकेंड ब्रांच असेंडिंग फेरेंजियल. थर्ड लिंगुअल आर्टरी. फोर्थ फेशियल आर्टरी. फिफ्थ occipital artery. Sixth occipital के बाद पोस्ट ऑरिकुलर. ठीक, ऑक्सीपिटल एंड पोस्ट ऑरिकुलर चले जाते हैं पीछे और फेशियल के ऊपर स्ट्रेट जाता है एंटीरियर टू द ईयर. क्या क्या होते हैं? सुपरफिशियल टेम्पोरल इज अ टर्मिनल. उससे पहले एम से ये कौन सा एरिया है? मैक्सिलरी आर्टरी. ठीक है, तो हमारा ईयर जो है वो किस जोन में है? टेम्पोरल, मैक्सिलरी, पोस्ट ऑरिकुलर एंड पार्टली ऑक्सीपिटल. तो इन्हीं 4 आर्टरी से आपका ये जोन सप्लाई होगा. डोंट गो फॉर अदर थिंग्स बिकॉज वो नीचे हैं. ठीक, तो एनीबडी कैन रिपीट द नेम्स फिर से? सुपीरियर थायराइड, असेंडिंग फेरेंजियल, लिंगुअल, फेशियल, ऑक्सीपिटल. हाँ, फेशियल तक हो गया. अब आया ऑक्सीपिटल, पीछे जा रहा है तो इसका सप्लाई जा सकता है. हाँ, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर उसका भी आएगा. थर्ड सामने जो है मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल. ठीक है, तो ये 4 आर्टरीज हैं, इनके ऑरिकुलर ब्रांचेस सप्लाई करेंगे. सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स कि नाम आपको याद करना है. इन 4 आर्टरी के ऑरिकुलर ब्रांचेस सप्लाई हो. देखो वही आएगा सर. देखो पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी जैसे मैंने बोला, इट इज द डोमिनेंट आर्टरी.
ठीक है. एंटीरियर ऑरिकुलर ब्रांचेस ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आ गया. उसके बाद सुपीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ दिस ओनली. उसके बाद स्मॉल ऑरिकुलर ब्रांच फ्रॉम द ऑक्सीपिटल आर्टरी, सेम थिंग. तो इट विल बी इजियर टू राइट इन द एग्जाम. ठीक, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. हाँ, अब आते हैं पिन्ना के नर्व सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस विल बी यूटिलाइज्ड इन गिविंग local anesthesia during ear surgeries. ठीक, so you should be thorough with this because we will be showing you certain OT procedures. At that time we will be asking you this. If you are unable to tell this, go out of the OT because this is the basic thing. ये आपको जानना है तब ना आप आगे के स्टेप्स करेंगे. अब उसको पेन फ्री सर्जरी दोगे. बताओ क्या क्या होता है. दिस फेमस डायग्राम. ठीक, ये पिन्ना का lateral view. This part comprising the tragus and the anterior part of the helix and the root of the helix, that is supplied by what nerve? Auriculotemporal nerve. ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या नर्व्स है? ऑरिकुलोटेम्पोरल है, ग्रेटर ऑरिकुलर है और क्रेनियल नर्व 7 and 10 है. ठीक, बस इतने ही हैं. और जो हमारा मीडियल सरफेस है वहाँ पे एपेक्स के तरफ लेसर ऑक्सीपिटल नर्व एक अलग है. तो कितने नर्व्स हुए? 1, 2, 3, 4 और एक 5. 5 नर्व्स आर एसोसिएटेड विद द पिना. ठीक, तो एंटीरियरली क्या हुआ? ऑरिकुलोटेम्पोरल. मेजॉरिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पिना इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व. ठीक है, एंड दिस cavum concha part and leading into the extraordinary canal, it is supplied by 7th and 10th nerve. 7th जो नर्व है, 10th जो नर्व है, तो 10th नर्व जो है that is a named nerve. ठीक है, auricular branch of vagus nerve is a named nerve called as Arnold's nerve. ठीक है, very good. अच्छा, this is the lateral side and this is the medial side. Medial side में भी again majority part like the lateral side supplied by greater auricular nerve, okay, and the upper part, ठीक, that is supplied by the lesser occipital nerve. This is the new hair. ठीक, and again the adjacent part, इधर का adjacent पीछे की तरफ क्या होगा? जहाँ पे retroauricular groove है वो वाला part जो है that is supplied by again 7th and the 10th nerve. Okay, याद रहेगा? ठीक. So the lymphatic drainage सिंपल है. प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में जाएंगे, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में जाएंगे एंड जो अपर नेक में जो डीप सर्वाइकल नोड्स है वहाँ जाएंगे. ठीक. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्स्ट्रा ऑरिटरी कैनाल. अप्रॉक्सीमेटली इट इज व्हाट आई सेड 2.4 centimeter or 24 millimeters long. Cartilage in the later 1/3 and bone in the medial 2/3. Now the diameter of the canal varies greatly between individuals and between different races. In adults, the cartilage portion runs inwards, upwards and backwards. Inwards, upwards and backwards. That means the canal is not a straight structure. It makes it a shape like what? S. Take. So to straighten a S, what you have to do? To see something inside in a S, you need to straighten it. Then only you can see. To see the tympanic membrane, what you will have to do? Because tympanic membrane is at the end of the canal. After that S, so what will you will be doing to see that? Opposite to that. That is why we are pulling the pinna upward, outward and laterally to straighten the S. Okay? Whenever we are examining the patient in our OPDs, we will be holding the pinna, pulling it upward, outward and laterally, then only we can straighten the canal. Okay? Otherwise, if you don't straighten it, you will be seeing only the wall. Sir, pinna तो मतलब membrane तो दिख नहीं रहा है इसमें. कैसे दिखेगा? वो तो उसके end में है ना. So this is the importance of this direction. Okay. Lateral cartilaginous portion is about 8 millimeters long and is continuous with the auricular cartilage. Okay.
it has two deficiencies. This is very important MCQ question. It has two deficiencies called as fissures of Santorini. तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? पैरोटिड और सुपरफिशियल मैस्टॉइड इन्फेक्शंस कैन अपीयर इन द कैनाल और वाइस वर्सा. समझ में आया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल का जो कार्टिलेज है उसमें 2-3 डेफिशिएंसीज होती हैं. डेफिशिएंसी मतलब ओपनिंग्स या जहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है. दोज आर कॉल्ड एज द फिशर्स ऑफ सैंटोरिनी. तो उसके वजह से क्या हो सकता है? अगर पैरोटिड में कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो कैनाल में प्रेजेंट कर सकता है, या मैस्टॉइड में कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो भी कैनाल में प्रेजेंट कर सकता है उस ओपनिंग के थ्रू. ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now coming on to the bony canal. Bony canal is about 16 millimeters long, narrower than the cartilaginous portion. Okay. Antero-inferior part of the bony canal may present as a deficiency called as foramen of Hashke in children up to age of 4 or sometimes in adults, permitting infection to and from the parotid. ये यहाँ भी आपको एक deficiency मिलेगा. तो दोनों named हैं, name structures हैं. You should be knowing this. This can be asked in your exam. Now, the medial end of the bony canal is marked by a groove, the tympanic sulcus, which is absent superiorly. Read this line again. The medial end of the canal, मतलब जो medial most portion है canal का, at the end of the 24 millimeter part, there is a groove that is called as the tympanic sulcus, which is absent superiorly. Why this is important? Because tympanic membrane is lodged in this groove. ठीक है, tympanic membrane इसी groove में बैठा रहता है, tympanic sulcus में. ठीक, the tympanic bone forms the greater part of the canal and also carries the tympanic sulcus. The squamous bone forms the roof. अच्छा, very important question. Anybody can tell what are the parts of temporal bone? टेम्पोरल बोन के क्या पार्ट्स होते हैं? मैस्टॉइड और कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7. एक ही, मैं जब भी होगा किसी एक टेम्पोरल बोन का, ये थोड़ा पूछा जाएगा कितने टेम्पोरल बोन होते हैं. तीन होते तुम्हारे हिसाब से? 3 तो ऑप्शन में ही नहीं था. जायगोमा टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है, वो तो अलग बोन है. जायगोमेटिक बोन उसका नाम ही है. टिम्पैनिक पार्ट, स्क्वैमस पार्ट, पीट्रस पार्ट, मैस्टॉइड पार्ट, कितने हुए? 4. और एक हुक सा होता है कुछ, स्टाइलॉइड प्रोसेस. पूछा गया था एग्जाम में एनाटॉमी में, तो भूल गए. तो ठीक है, तो ये 5 पार्ट होते हैं. तो यहाँ वाला क्या लाइन था? द टिम्पैनिक बोन फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कैनाल. टिम्पैनिक पार्ट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कैनाल एंड ऑल्सो कैरीज द टिम्पैनिक सल्कस. द स्क्वैमस बोन फॉर्म्स द रूफ. ठीक, क्या क्या फिर से पार्ट्स बोलो? टिम्पैनिक, स्क्वैमस, मैस्टॉइड, पीट्रस और स्टाइलॉइड. देखो जो जो अभी पूछ रहा हूँ, दिस शुड नॉट बी, मतलब गलती नहीं होना चाहिए इसमें. ठीक है, बार बार एक चीज़ नहीं, कोई स्पून फीडिंग नहीं चलेगा. ठीक है, दीज आर द बेसिक थिंग्स. ठीक, सो अब ये सारे जो पार्ट्स है ये तो एक दूसरे से अटैच्ड है ना. तो जहाँ जहाँ अटैच्ड हैं वहाँ वहाँ पे एक सूचर लाइन है. ठीक, सो देयर आर 2 सूचर लाइन्स इनसाइड द कैनाल. वहाँ पे कौन कौन से पार्ट थे? स्क्वैमस एंड टिम्पैनिक थे. तो क्या क्या होंगे? टिम्पैनोस्क्वैमस सूचर एंड मैस्टॉइड पोस्टीरियरली होता है, इसलिए टिम्पैनोमैस्टॉइड पोस्टीरियरली. ठीक, सिंपल. सो देयर आर 2 constrictions इन द कैनाल. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चों में जो एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल में फॉरेन बॉडी घुसा लेते हैं, बहुत कॉमन है.
तो अगर कॉन्स्ट्रिक्शन है कैनाल में तो फॉरेन बॉडी वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक। सो एट द जंक्शन, वेयर आर द कॉन्स्ट्रिक्शंस? एट द जंक्शन ऑफ द कार्टिलेजिनस एंड द बोनी पोर्शन, पहला कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ कार्टिलेज और बोन मर्ज कर रहे हैं उस जगह पे, आउटर 8 मिलीमीटर कार्टिलेज, इनर 16 मिलीमीटर बोन, जहाँ पे वो दोनों जुड़ रहे हैं। सेकेंड इज द इस्थमस, ये कहाँ पे होता है? अराउंड 5 मिलीमीटर फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वेयर द प्रोमिनेंस ऑफ द एंटीरियर वॉल रिड्यूसेस द डायमीटर, ठीक है। मतलब और अराउंड अबाउट फर्स्ट पॉइंट से अराउंड अबाउट 10 मिलीमीटर इनसाइड देयर इज अ हम्प that is called as the isthmus, ठीक है, where the prominence, there is a prominence in the anterior wall of the canal that reduces the diameter. तो ये दोनों जगह पे चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं, ठीक है, फंस सकते हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है फंसना, ओके। Deep to the isthmus, anterior inferior portion of the canal dips forward, forming a wedge-shaped anterior recess between the tympanic membrane and the canal, okay. The external canal is lined with what? Skin. अब स्किन का क्या खासियत है? द स्किन अच्छे से इस लाइन को पढ़ो, हाँ। द स्किन मैचुरेशन टेकिंग प्लेस डायरेक्टली टुवर्ड्स द सरफेस। नॉर्मली ये होता है, स्किन मैच्योर कैसे करता है? सरफेस की तरफ करता है, वहाँ से डिस्क्वामेट होता रहता है, फ्लेक होके निकल जाता है, ठीक। बट दैट इज नॉट हैपनिंग हियर। Instead of skin maturation taking place directly towards the surface, there is outward oblique growth of the epidermis of the canal skin and pars flaccida. Pars flaccida is a part of the tympanic membrane, so that the surface layer effectively migrates towards the external opening of the canal. इसका मतलब समझ में आया कि अगर obliquely वो shed कर रहा है तो skin अंदर में accumulate नहीं होगा, वो शेड आउट होता रहेगा। जो हम कभी होता है ना, इचिंग हो रहा है, आप देखते हो व्हाइटिश कलर का फ्लेकिंग सा निकला, वो क्या है? दैट इज अ डिस्क्वामेटेड स्किन, द अपर एपिडर्मल लेयर दैट वाज डिस्क्वामेटेड। तो इट इज डिजाइन इन सच अ वे, दैट इज व्हाई द ऑब्लिक्विसिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑब्लिक्विसिटी ऑफ द कैनाल, इट इज शेडिंग इटसेल्फ आउट, इट इज नॉट गेटिंग एक्यूमुलेटेड इनसाइड। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर दिस इज हैम्पर्ड, then that squamous desquamated epithelium would get accumulated inside, that results in formation of cholestatoma, ठीक। that is a very bad disease that causes many problems, that can cause erosion of the bone, erosion of the structures, many things, ठीक है। तो that normally doesn't happen because of this shedding mechanism. If this gets hampered, then that disease can occur, okay. So the normal migration of this skin is around 0.1 millimeter per day. This is a MCQ question, take. The absence of hair serves to distinguish the bony from the cartilaginous canal. कहाँ होता है hair? bony में होता है, cartilaginous में होता है? bony में होगा, cartilaginous में होगा, दो ही तो है। बाहर तो फील होता है ना, तो कार्टिलेजिनस में ही होगा, ठीक। द आउटर लिमिट्स ऑफ द ईयर कैनाल आर सम सॉर्ट ऑफ हेयर दैट प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ द कैनाल, ठीक है। इन दिस रीजन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इन दिस रीजन्स आर क्लस्टर्स ऑफ सेरुमिनस एंड सिबेशियस ग्लैंड्स। द सेरुमिनस ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ वाटरी व्हाइट सिक्रीशन दैट स्लोली डार्कन्स, टर्निंग सेमी सॉलिड एंड स्टिकी एज इट ड्राइज, ठीक। तो दो तरह के ग्लैंड्स हैं एक्सट्राऑर्डिनरी कैनाल में, वन इज सेरुमिनस एंड सेकंड इज सिबेशियस। सिबेशियस इज सिक्रेटिंग व्हाट? सीबम। सीबम कैसा होता है? ऑयली, ठीक है। द सिबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस एन ऑयली मटेरियल सीबम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ देयर फैट कंटेनिंग सेल्स विच इज यूजुअली एक्सक्रीटेड इनटू द रूट्स ऑफ द हेयर फॉलिकल, ठीक। द मिक्सचर ऑफ द डिस्क्वामेटेड सेल्स, मतलब जो एपिथेलियल जो शेड हो रहा था, द सेरुमेन secreted from this gland and the sebum secreted from this gland, it results in formation of wax. तो ईयर वैक्स कैसे बनता है अब पता चल गया, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये सेरुमिनस ग्लैंड जो है ये किस टाइप ऑफ ग्लैंड है,
What type of gland is it? It is a modified sweat gland. ठीक, इसका मतलब स्वेट ग्लैंड हो गया, दूसरा इधर से सीबेशियस ग्लैंड हो गया, दोनों हो गए. ठीक, एंड दोनों के मिक्सचर विद द डी स्क्वामेटेड एपिथेलियम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ईयर वैक्स. ओके, so now coming on to the blood supply of the EAC. Again remember the anatomy. क्या क्या है वहाँ पे आर्टरीज, जो मेजर आर्टरीज हैं? ऑक्सीपिटल, पोस्ट ऑरिकुलर और सामने मैक्सिलरी और टेम्पोरल. तो अब ऑक्सीपिटल थोड़ा नीचे हो गया क्योंकि नीचे से वो पीछे की तरफ जाता है, ऑक्सीपिट की तरफ जा रहा है ना. तो पोस्ट ऑरिकुलर, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल, इन तीन आर्टरीज के ऑरिकुलर ब्रांचेस देख लो इसमें है कि नहीं. ऑरिकुलर ब्रांचेस ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल, deep auricular branch of first part of maxillary artery and auricular branches of the post auricular artery. ठीक, उसके बाद venous drainage is inside the external jugular vein, maxillary vein and pterygoid plexus. Okay. Again, this is also important for giving anesthesia to the EAC. जो पिन्ना का जो anterior half था किससे था? ऑरिकुलर टेम्पोरल से था. मेजॉरिटी पार्ट था ग्रेटर ऑरिकुलर से, और जहाँ पे ओपनिंग था एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल का वो एरिया था 10th और 7th से. ठीक, तो अब कैनाल में हम जा रहे हैं तो एंटीरियर हाफ मेंटेन्ड बाय द सेम ऑरिकुलो टेम्पोरल, फ्लोर इज गिवन बाय द 10th नर्व एंड पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट इज गिवन बाय द कौन सा 7th नर्व. ठीक, वही तीन चीज है. ठीक, up till the tympanic membrane. Okay, again lymphatic drainage same, post auricular, pre auricular, upper deep cervical nodes. Now this is the relationship of extra canal to the adjoining structures. Medially जो है तुम्हारा middle ear आ गया, outside जो है तुम्हारा बाहर opening, superiorly जो है middle cranial fossa and inferiorly बहुत important structures हैं, jugular bulb है, carotid आर्टरी है, फेशियल नर्व है, एग्जिट उसका स्टाइलॉइड प्रोसेस है, पैरोटिड ग्लैंड ये सब है. ठीक है. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट थिंग कंप्राइजिंग द ये एक्सटर्नल ईयर, दैट इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ओके, तो मीडियल एंड ऑफ द ईएसी, इट फॉर्म्स द मीडियल एंड ऑफ द ईएसी एंड फॉर्म्स मेजॉरिटी ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी. ओके, टिम्पैनिक कैविटी इज क्या? मिडिल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पैनिक कैविटी. तो मिडिल ईयर का लेटरल वॉल कौन बनाता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाता है. ठीक है, सेपरेट्स ईएसी फ्रॉम द टिम्पैनिक कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर. ओके, हाउ डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक स्लाइटली ओवल इन शेप, फॉर्मिंग एन एंगल एट अबाउट 55 डिग्री विद द फ्लोर. इट इज 9 to 10 मिलीमीटर्स टॉल, 1 मिलीमीटर उससे कम. वाइड, चूंकि ओवल है, 9 to 10 tall, 8 to 9 wide, and thickness is 0.1 millimeter. Most of the circumference is thickened. Most of the circumference is thickened to form a fibrocartilaginous ring called as tympanic annulus, which sits in the groove. जो medial end of the tympanic ये extraordinary canal क्या बनाता है? ग्रूव बनाता है. क्या कहते हैं उसको? tympanic sulcus. तो tympanic membrane का जो circumference है, that is thickened into a fibrocartilaginous structure called as tympanic annulus. This tympanic annulus will sit inside the tympanic sulcus. इसीलिए tympanic membrane अपने जगह से हिलता नहीं है. That is the place where it sits. ठीक, the sulcus does not extend into the, हाँ, अब ये जो sulcus है ना, ये superiorly dehiscent होता है. इसका भी इंपॉर्टेंस है, बाद में हम लोग जब वो पार्ट पे जाएंगे तो बताएंगे. द सल्कस डज नॉट एक्सटेंड इनटू द नॉच ऑफ रिविनस एट द रूफ ऑफ द कैनाल विच इज फाउंड बाय द पार्ट ऑफ द स्क्वामा और टेम्पोरल बन. मतलब दिस सल्कस इज नॉट अ सर्कमफेरेंशियल पार्ट थिंग, इट इज डेहिसेंट, मतलब इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर पार्ट. ठीक, सो फ्रॉम द सुपीरियर लिमिट ऑफ द सल्कस the annulus becomes a fibrous band which runs centrally as anterior and posterior malleolar folds to the lateral portion of malleus. ठीक है, the handle of, अच्छा अब जो है इसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ो.
This is the tympanic membrane, oval in shape. This one, this is 9 to 10 millimeters. This is 8 to 9 millimeters. Thickness is around 0.1 millimeter. This rim, outer, मोटा है ना थोड़ा सा. This is called as the tympanic annulus. This is, what is it made up of? It is a fibrocartilaginous structure. मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कौन सा कार्टिलेज कैल्सिफाई करता है? फाइब्रस कर सकता है, हाईलाइन कर सकता है. तो दिस इज फाइब्रस, दैट मीन्स इट कैन कैल्सिफाई दिस पार्ट. इसीलिए इसमें एक एंटिटी होता है, दैट इज कॉल्ड एज टिम्पेनोस्क्लेरोसिस, इन विच दिस पार्ट कैल्सिफाइज and the tympanic membrane is unable to move, patient will present with hearing loss. ठीक. So this is a fibrocartilaginous structure. Okay. Now और क्या structures दिख रहे हैं? This elongated part is called as the handle of malleus. How many ossicles are there in ear? 3. Name? Malleus, incus and stapes. What is visible over the membrane is the malleus. What part of malleus? This is the handle of malleus. This is the lateral process of malleus. ठीक. बाद बाकी के अंदर होते हैं, हेड, नेक, वो सब चीज़ें अंदर होते हैं, वो दिखता नहीं है. अगर वो दिख रहा है तो दैट इज अ पैथोलॉजी. द मेम्ब्रेन हैज रिट्रैक्टेड इनसाइड, दैट इज वाई दोज पार्ट्स आर विजिबल, दोज आर द पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स. ठीक है. ये अगर दिख रहा है, दिस इज नॉर्मल. ओके. सो अब ये जो पूरा पार्ट है इनसाइड, दिस इज कॉल्ड एज द पास टेंसा. दिस अबव पार्ट, दिस वन, मतलब ये जो आर्चेस दिख रहे हैं ये दोनों, दीज आर कॉल्ड एज द मैलियल फोल्ड्स. ये पोस्टीरियर मैलियल फोल्ड, ये एंटीरियर मैलियल फोल्ड. ठीक है. कैन एनीबॉडी टेल किस साइड का मेम्ब्रेन है ये? राइट और लेफ्ट? राइट. ये जो टिल्ट होता है ना, ये टिल्ट किधर है? ये अगर सेंटर है तो ये टिल्ट किधर है? आपके राइट साइड है. ठीक. तो राइट साइड का है. दूसरा कैसे पता करते हैं? ये जो लेटरल प्रोसेस जो है, ठीक, ये जो लेटरल प्रोसेस है, इसका टिल्ट जिधर होगा, अकॉर्डिंग टू यू, मैंने हु इज सीइंग इट, तो उधर का मेम्ब्रेन होगा. तो टिल्ट किधर है? राइट. सिंपल. ठीक. समझ में आया बात? अच्छा. तो these two arches, these are called as the malleal folds. अभी जस्ट आपको बताया गया कि ये जो एनुलस होता है, टिम्पैनिक एनुलस, ये थ्रू एंड थ्रू नहीं होता है. ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, उसके बाद ये मैलियल फोल्ड में कंटिन्यू करता है. ठीक. और ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पे वो एब्सेंट है, उसको कहते हैं नॉच ऑफ रेविनस. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द नॉच ऑफ रेविनस. ठीक है. तो पार्स, दिस इज flaccida, this is pars tensa. Pars tensa is surrounded by the annulus, but pars flaccida is not having that annulus part. हाँ, ठीक, समझ में आया? अच्छा, और क्या दिख रहा है इसमें? ये शाइनिंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ कोन ऑफ लाइट. व्हाई डज दिस हैपन? दिस इज विजिबल. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन. द मेम्ब्रेन इज एट ऑब्लिक कितना डिग्री? 55. तो लाइट किसी पार्ट से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. ठीक है. नॉर्मली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज व्हाट? इट इज अ ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर. ट्रांसलूसेंट, इट इज हैविंग अ शाइन इसके ऊपर होता है. ठीक है. तो व्हेन यू सी समथिंग ब्राइट ऑब्जेक्ट, ग्लास के ऊपर आप लाइट मारोगे जो कि थोड़ा टिल्टेड है, तो कहीं से वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा. तो नॉर्मली ये एंटेरो इन्फीरियरली, ये एंटीरियर हो गया, पूरा एंटीरियर लिखा हुआ है, एंटेरो इन्फीरियर ही जो है कोन ऑफ लाइट प्रेजेंट होता है. इफ दिस कोन ऑफ लाइट इज एब्सेंट, देन दैट इज अ पैथोलॉजी. तो जब व्हेन वी आर एग्जामिनिंग द ईयर, ओटोस्कोपी, व्हेन वी आर डूइंग ओटोस्कोपी, विल बी सीइंग दिस, कि ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कि नहीं, कि इसमें से कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे मैलियर हेड, नेक दिखने लगा, मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो गया, ये एब्सेंट हो गया, इसका मतलब उसका ऑब्लिक्विसिटी ठीक नहीं है, मतलब वो भी रिट्रैक्शन हो सकता है, या अंदर में कुछ एक्यूमुलेशन है जो उसको बल्ज करा रहा है. ठीक है. तो नाना रकमेर डिजीजे ওটা আলাদা আলাদা মতো থাকবে. ওকে. সো the cone of light is this, the handle of malleus is this
this apex of the handle of malleus forms an umbrella like structure called as the umbo. Okay, and this is the pars tensa, this is the pars flaccida, these are the malleal folds. Okay, and since it is a translucent structure like butter paper, ठीक, इसीलिए आपको इनकस का शैडो दिख सकता है. ये मैलियस है, इनकस किधर होगा, पोस्टीरियर सुपीरियरली होगा, यहाँ पे होगा, ये दिख रहा है हल्का से लंबा सा, इनकस का शैडो दिख सकता है, प्लस माइनस है लेकिन दिख सकता है. ठीक, the handle of malleus is clearly visible within the tympanic membrane. This leaves a small triangular region of the tympanic, इसको पढ़ो अच्छे से. This leaves a small triangular region of the tympanic membrane above the malleal folds within the notch of Rivinus called as pars flaccida. ठीक, मतलब malleal fold के ऊपर और notch of Rivinus. This is the notch of Rivinus, this is the malleal fold. ये वाला area is called as the pars flaccida. अब बाद बाकी का जितना area है that is called as the pars tensa. Pars tensa forms the rest of the tympanic membrane. Clear? आप टेंसा और फ्लैसिडा क्यों बोलते हैं? टेंस होगा और फ्लैसिड होगा, सिंपल. ठीक है, उसके लिए आपको जानना होगा कि व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, तभी तो आप बताओगे कि कौन सा इसमें प्रेजेंट है कौन सा नहीं है. तो पास्ट टेंसा इज मेड अप ऑफ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. बाहर एपिथेलियल, बीच में फाइब्रस और इनसाइड इज म्यूकोजल. 3 लेयर से बना रहता है. अब सारा खेल जो है दोनों में, दोनों के डिफरेंस में है, वो है मिडिल फाइब्रस लेयर का. ठीक है, लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक में आउटर एपिथेलियल, मिडिल इज द फाइब्रस लेयर एंड इनर इज द म्यूकोजल लेयर. ठीक है, तो द मिडिल फाइब्रस लेयर also called as the lamina propria has radially oriented fibers in the outer layers and circular and parabolic fibers and transverse fibers in the deeper layers. ये fibrous layers में arranged होते हैं. ठीक है, in pars flaccida the lamina propria is less marked, मतलब fibrous layer is less marked. ठीक है, and the orientation of collagen fiber seems random, that is why it is flaccid. This is a question, आपसे पूछा जाएगा वाइवा में, क्यों नाम ऐसा है दोनों का. ठीक है, नाउ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम जब भी डिस्क्राइब करेंगे, हाँ, इन आवर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, उसको कहते हैं, मतलब यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब इट इन ए सच अ वे कि आई शुड मेक अ पिक्चर इन माई माइंड कि हाँ वो चीज़ है उसको. ठीक, तो मेम्ब्रेन को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक, पहला लाइन जो होगा क्वाड्रेंट के लिए वो होगा अलोंग द हैंडल ऑफ मैलियस, और दूसरा लाइन जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन एट अम्बो. अम्बो कहाँ था? मैलियस के हैंडल के टिप पे था. तो फर्स्ट लाइन अलोंग द हैंडल ऑफ मैलियस, क्लियर हो गया. और सेकेंड लाइन कहाँ होगा? इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और उसका जो पॉइंट होगा दैट इज एट द अम्बो. तो अब जो 4 क्वाड्रेंट्स बने वो एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर. अब ये बताओ कि ये किधर का मेम्ब्रेन है? लेफ्ट. क्यों लेफ्ट? टिल्ट लेफ्ट तरफ है, और इसका जो लेटरल प्रोसेस है ये किधर पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट. दोनों चीज ठीक. ठीक है, तो ये हो गया एंटेरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, ये पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, ये एंटेरियर पोस्टीरियर इंफीरियर, ये एंटेरियर इंफीरियर. इसका मतलब कोन ऑफ लाइट कहाँ होता है? एंटेरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में होता है. ठीक है, एंटीरियर मत बोलना, एंटेरियर इंफीरियर बोलना. नाउ आर्टेरियल सप्लाई, अगेन सेम थिंग, वही चीज़. ठीक, इसमें एक चीज़ एडिशन हो जाएगा कि मेनिंजियल आर्टरी का भी ब्रांच इसमें आता है. पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी से आता है, उसका जो स्टाइलोमास्टॉइड ब्रांच है पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी का वो सप्लाई करता है. मेनिंजियल आर्टरी से एक ब्रांच आती है, और एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से डीप ऑरिकुलर ब्रांचेस आते हैं. ठीक है, नाउ नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई कैनाल का क्या था? एंटीरियरली, एंटीरियर हाफ में क्या था? ऑरिकुलो टेम्पोरल, 5th नर्व का ब्रांच. पोस्टीरियर सुपीरियरली एंड पोस्टीरियर इंफीरियरली क्या था? सुपीरियरली था 7th और इंफीरियरली था 10th, आर्नोल्ड. ठीक है, इसमें क्या है?
इसमें एंटीरियर हाफ जो है, अब इसमें हाफ हाफ हो गया, एंटीरियर हाफ हो गया, ऑरिकुलोटेम्पोरल फिफ्थ का ब्रांच एंड वेगस का ब्रांच। ठीक, ये हो गया लेटरल साइड में, बाहर की तरफ। इसका तो दो साइड है ना, मिडिल ईयर में भी तो जा रहा है, ये दूसरा साइड अंदर वाला, और अंदर का जो सरफेस है दैट इज सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो कैनाल में आपके 3 क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रहे हैं, मेम्ब्रेन में भी आपके 3 क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब एमसीक्यू बन सकता है ना कि कौन सा क्रेनियल नर्व सप्लाई नहीं कर रहा है, 4 ऑप्शन देके। ठीक, सिंपल। ठीक, अब जो इनसाइड सप्लाई है ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रांच, उसका क्या नाम है, नेम नर्व है जेकबसन्स नर्व। ठीक, ओके। इसके बाद मिडिल ईयर है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल ईयर एंड बी थरो विद इट। मिडिल ईयर भी पढ़ लीजिएगा, देन विल बी इजियर टू डिस्कस।